بڑھ جاتا ہے. تو میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں بڑے دن کے لیے. تو آئیے ہم سب اپنے ایمان کا اقرار کریں، اور آپ سب جو ہے وہ میرے پیچھے کہہ سکتے ہیں، میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، ہماری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطوس کے عہد میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا قادر مطلق باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے. میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر. آمین. آئیے خداوند کے زندہ کلام کی پاک آواز کو سنتے ہیں، اور جو آج کا متن ہے، حوالہ ہے کلام مقدس میں سے عبرانیوں کے نام کا خط ہے، اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی 4 آیات ہیں جو ہم خداوند کے حضور میں آج کی تلاوت کے طور پر سنیں گے. پادری حسن سے گزارش ہے کہ وہ بلند آواز سے خدا کے کلام کی تلاوت کریں. عبرانیوں 2 باب اور اس کی پہلی 4 آیات. نئے اہنامہ میں سے عبرانیوں کا خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی 4 آیات. اس لیے جو باتیں ہم نے سنی ان پر اور بھی دل لگا کر غور کرنا چاہیے تاکہ بہ کر ان سے دور نہ چلے جائیں، کیونکہ جو کلام فرشتوں کے مارفت فرمایا گیا تھا جب وہ قائم رہا اور ہر قصور اور نافرمانی کا ٹھیک بدلہ ملا، تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں، جس کا بیان پہلے خداوند کے وسیلہ سے اور سننے والوں سے ہمیں پائے ثبوت کو پہنچا، اور ساتھ ہی خدا بھی اپنی مرضی کے موافق نشانوں اور عجیب کاموں اور طرح طرح کے موضوع اور روح القدس کی نعمتوں کے ذریعے سے اس کی گواہی دیتا رہا. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور اچھا، میری بڑی گزارش یہ ہے کہ کرسمس کا جو کہ دن ہے، اور یہ دن سال میں پھر ایک بار آنا ہے، اور کئی ایسے بہن بھائی بھی ہیں جنہوں نے سال میں ایک بار ہی آنا ہے. تو برائے مہربانی ذرا تھوڑا سا کلام پر توجہ ضرور کرنا ہے، تاکہ خدا کرے کہ یہ کلام سال بھر آپ کے کام آئے. عبرانیوں کا جو خط ہے یہ اس کے مصنف کے بارے میں جب بیان کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ معلوم نہیں ہے کہ یہ خط کس نے لکھا، لیکن بہت سے جو ہمارے علماء ہیں، بہت سے جو ہمارے کہنے کے اسکالرز ہیں،
وہ اس بات پر متفق ہے کہ یہ خط ضرور پالوس رسول یا اس کے کسی ہم اثر، اس کے کسی شاگرد نے یہ لکھا ہے۔ یہ خط جو ہے جب لکھا گیا تو مسیحیوں کے درمیان جو غیر اقوام تھی وہ ان پر ظلم و ستم کو جو ہے وہ راج کیے ہوئے تھے، اور کوشش یہی تھی کہ مسیحی اپنا ایمان چھوڑ دیں اور مسیحی اپنا ایمان تبدیل کریں اور یسوع سے وہ نکالی ہوئے۔ تو یہ خط مسیحیوں کے ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے، مسیحیوں کے ایمان کی تقویت کے لیے لکھا گیا۔ یہ خط جو ہے، جو بائبل پڑھنے والے بچے ہیں، بائبل پڑھنے والے بہن بھائی ہیں جو واقعی خدا کے کلام کو سیکھنا چاہتے ہیں، یہ خط ان کے لیے بہت معاون ہے، کیونکہ یہ پرانے عہد نامے کے جو خدا کے وعدے ہیں اور پرانے عہد نامہ میں جو قربانیوں کا سلسلہ چلتا ہے اور پھر کہانہ نظام چلتا ہے، اس کو جو ہے وہ بنیاد بنا کر یسوع مسیح کو حقیقی کاہن اور یسوع مسیح کے کفارے کو، فدیے کو حقیقی فدیہ جو ہے وہ قرار دیتا ہے۔ اس خط میں یہ بیان کیا گیا کہ ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہے، اور پھر ایمانداروں کی اذیتیں بھی بیان کی کہ اگر تم پر اذیتیں ہیں تو تم سے پیچھے والوں پر بھی تھی۔ انہوں نے دکھ سہے ہیں، مصیبتیں سہی ہیں، سب کچھ سہے، لیکن انہوں نے اپنے ایمان سے جو ہے وہ منکر نہیں ہوئے اپنے ایمان کے۔ تو اس لیے اذیتیں، دکھ، آج کیا مسیح پاکستان کی جو مسیح کلیسیا اس پر اذیتیں نہیں آتی ہیں۔ پچھلے دنوں بھی، پچھلے سال ہی ایک واقعہ ہوا، جڑا والا کا واقعہ ہے، اس سے پہلے شانتی نگر کا واقعہ، لاہور کے اندر واقعات اور جگہ جگہ جو ہے ہوتے رہتے ہیں۔ سو کہنے کا مقصد ہے بے شمار اذیتیں پاکستان کلیسیا پر بھی آتی ہیں، لیکن اذیتوں کے آنے کا جو مقصد ہے یہ نہیں ہے کہ اپنے ایمان سے ہم روگردانی کر جائیں، ہم اپنے ایمان سے منکر ہو جائیں، بلکہ ہم اپنے ایمان پر ڈٹے رہیں، کیونکہ جو اذیتوں میں قائم رہتا ہے، جو دکھوں میں قائم رہتا ہے، وہی خدا میں مقبولیت حاصل کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو یہ خط اس نسبت سے لکھا گیا۔ اور پھر جو ہے آج کا جو متن ہے اس کی طرف بڑھیں گے، اور یہاں پر خدا کے بندہ نے لکھا، اس لیے جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان پر اور بھی دل لگا کر غور کرنا چاہیے، دل لگا کر غور کرنا چاہیے، تاکہ بہہ کر کہیں اور نہ چلے جائیں، دور نہ چلے جائیں، کیونکہ جو کلام خدا فرشتوں کی معرفت فرمایا کہ جب وہ قائم رہا اور ہر قصور اور نافرمانی کا ٹھیک ٹھیک بدلہ ملا، تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے۔ یاد رکھیے، خدا کے جو کلام کا مرکزی مضمون ہے وہ نجات ہے۔ زندہ خدا کا جو کلام آپ کے اور میرے گھروں میں الماریوں میں پڑا ہے نا، اس کا مرکزی مضمون ہے نجات، کہ خدا دنیا سے محبت رکھتا ہے اور خدا اس محبت میں اپنے بیٹے کو بخش دیتا ہے، مفت دے دیتا ہے، اور پھر جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے اس کے بدلے میں خدا اسے ابدی نجات سے جو ہے وہ معمور کرتا ہے، منور کرتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کے سارے کلام کا مرکزی مضمون ہے ہماری نجات۔ خدا نے آدم کو اپنی شبیہ صورت پر بنایا، پیار کیا، عدن میں رکھا، اس کا ساتھی بنایا، لیکن آدم خدا کی حکم عدولی کی طرف بڑھ گیا۔ خدا نے کہا اس درخت کا پھل نہیں کھانا، جس دن تو نے کھایا تو کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا۔ لیکن کیا ہے؟ آدم نے کیا کیا؟ خدا کی بات نہیں مانی اور ابلیس کی بات کو مان لیا، پھل کھایا۔ آدم کیا ہو گئے؟ آدم اور حوا کیا ہو گئے؟ کیا ہو گئے؟ ننگے ہو گئے۔ اب جب ننگے ہو گئے تو خدا نے کیا کیا؟
खुदा ने चमड़े के कुर्ते उनको पहनाए, क्योंकि खुदा किसी का भी नंगापन नहीं देख सकता, खुदा किसी की शर्मिंदगी नहीं देख सकता। तो शर्मिंदगी से निजात खुदा ने दी, नंगेपन से खुदा ने निजात दी। और जब चमड़े के कुर्ते पहना जाते हैं ना, तो चमड़ा ऐਵੇਂ नहीं आता, किसी जानवर को ज़बह करना पड़ता है। तो ये बात, इस बात को खड़ी करते, ये जो वाक्य है इस बात की शामिल दलील है कि बगैर फिदी और कफारे के नंगापन भी नहीं रखा जा सकता। तो इसलिए खुदा ने निजात का काम वहीं से स्टार्ट किया, इशारे पेश किए, निशान दिए। आगे चलकर जब आदम और हवा को अदन से निकाला, सजाएं देना शुरू की, साथ ही निजात का वादा कर दिया, मैं औरत में और सांप में और औरत की नस्ल में और सांप की नस्ल में अदावत डालूंगा। सांप की नस्ल औरत की नस्ल की एड़ी पर काटेगी, और औरत की जो नस्ल है यानी यीशु मसीह, वो सांप के सर को कुचल देगा। सो निजात का वादा किया गया, और यहां से ईमानदारों की उम्मीद बंध गई कि निजात आएगा, छुड़ाने वाला आएगा, बचाने वाला आएगा जो सांप के सर को कुछ देगा। और सांप का सर क्या है? सांप के सर में क्या होता है? मौत होती है। जिन्होंने लड़े है ना उन्हें पता है, सांप जिसको काटता है ना उसे पता है सांप के सर में मौत है। तो जिसको उसने काटा वो मौत में चला गया। तो इसलिए यीशु मसीह ने सांप के सर को कुचल दिया, मौत को कुचला है। तो ये खुदा ने निजात की बुनियाद रखी, खुदा ने निजात के वादे किए, और खुदा आगे भी शरीयत में भी निजात के जो है तरीके बताता है। शरीयत 1500 साल तक रही, निजात के तरीके हैं। अगर मैं शरीयत के ताबे हूं और मैंने गुनाह किया, तो तरीका क्या है निजात पाने का? उस गुनाह से छुटकारा पाने को, क्योंकि गुनाह की मजदूरी तो क्या है? मौत है। लेकिन उस गुनाह से छुटकारा पाने का तरीका यह है कि मैंने एक बरा लिया, उस बरे को मैं काहन के पास ले गया, पादरी साहब के पास, मैंने उस पर बरे पर हाथ रखे, अपने गुनाहों का इकरार किया, और मेरे गुनाह बरे पर चले गए। अब काहन ने क्या किया? उस बरे को ज़बह किया, उसका खून कुर्बानगाह पर छिड़का, फिर उसको खुदा के खैमा में लेकर गया और खुदा के हजूर उसका खून छिड़का, और उस शख्स का यानी मेरा जो है वो कफारा हो गया, छुटकारा हो गया, मेरी निजात मुझे मिल गई। खुदा ने ये तरीका बताया। फिर साथ ही खुदा ने ये कानून बांध दिया कि शरीयत के मुताबिक सब चीजें खून से पाक की जाएंगी, और बगैर खून बहाए माफी नहीं होगी। जब तक खून ना बहाया जाए तब तक माफी नहीं होगी, तब तक निजात नहीं मिलेगी। अब बैलों और बरों का खून क्या होता? वो वक्ती निजात देता। बैलों और बरों का खून वक्ती तौर पर जो है वो जिंदगी जो है बख्शता, लेकिन जब मैं दोबारा गुनाह करूंगा तो फिर मुझे दोबारा कोई बुरा लाना पड़ेगा, फिर गुनाह करूंगा फिर बुरा लाना पड़ेगा। और ये सिलसिला तो साल ब साल और दिन ब दिन, महीनों पर महीनों चलता रहता, क्योंकि कोई ऐसा बशर नहीं है जो गुनाह ना करे, कोई ऐसा बशर नहीं जिससे खता ना हो जाए। तो फिर इंसान की निजात कैसे मुमकिन थी? हालांकि निजात की बुनियादें हैं। और फिर शरीयत के जमाना में, क्योंकि वो अहद फरिश्तों की मार्फत आया, उस अहद की नाफरमानी करने वालों को उसका ठीक ठीक बदला मिलता था, यानी सजाएं मिलती थी। और शरीयत के हुक्म है 613 अहकाम थे। तो 613 हुक्मों की नाफरमानी करने वालों को सजाएं मिलती। कहते एक दफा ना, क्योंकि सबत का दिन पाक रखना के हुक्म था, तीसरा के चौथा हुक्म है ये कि तू सबत का दिन पाक रखना और उसमें कोई बदनी मेहनत का काम ना करना। तो सबत के दिन में इस्राएलियों को, यहूदियों को ये हुक्म था कि तुमने कोई काम नहीं करना। एक शख्स जंगल में लकड़ियां काट रहा था, दिन सबत का था, किसी ने देख लिया, मूसा के पास लेकर आए कि इसने सबत के दिन काम किया है। मूसा ने खुदा से दरियाफ्त किया और खुदा ने कहा इसे पत्थर मार मार कर मार दिया जाए, क्योंकि इसने मेरे सबत का जो है वो इनकार किया है, मेरे सबत की बेहुरमती की है। इतनी सख्ती थी। और अगर किसी तुझी सारे शरीयत के जमाने च होंगे ना
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ ਨਾ ਗਿਰਦੇ ਆ ਕੇ ਹਰ ਦਵਾਰ। लेकिन बड़ा फजल हो गया तो सब ते मेरे समेत कि जो दिल करे ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, जो दिल करे जाने, टेंशन नहीं है जैसे ने मौजा मारना दिखती ने। लेकिन अगर शरीयत का जमाना देखें, हमारी मुसलमान कौम देखे, शरीयत के ताबे है ना, बेशक उन्होंने अपने आप को जैसे भी किया शरीयत के ताबे है, तो देखिए 5 वक्त वो नमाज के लिए कैसे जाते हैं। शरीयत के ताबे होने में ये जो है पाबंदियां थी, सख्तियां थी, कोई हुक्म को तोड़ता तो सजा मिलती। क्योंकि खुदा का कानून था, खुदा का कलाम था, खुदा ने बख्शा था, अगर कोई तोड़ता तो उसे सजा मिलती। लेकिन खुदा ने साथ निजात के लिए भी रास्ता निकाला। भला लाओ, हाथ रखो, इकरार करो, उसका खून जो है तुम्हारा कफारा बन जाएगा, फिदिया बन जाएगा। इसके बाद फिर जब इंसान अपने गुनाहों को ना खत्म कर सका, जब खुदा इंसान अपने गुनाहों पर काबू ना पा सका, तो खुदा को फिर हम पर तरस आ गया। तो उसने अपनी मोहब्बत में फिर क्या किया, अपने बेटे को दुनिया में भेजा। और आज हम उसके बेटे के जन्मदिन की खुशियां मना रहे हैं। जब वो पैदा हुआ, आसमान से फरिश्ते भी उतरे हैं। आलम बाला पर खुदा की तमजीद और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। जाओ, दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदा। गुजरिए बैतलहम की चरनी को गए हैं, जाके बच्चे को देखा, यूसुफ को देखा, मरियम को देखा, खुदा की हम्द करते हुए लौटे हैं। इस बात को मशहूर किया है। पूरब में एक सितारा जाहिर होता है और कई मजूसी उस सितारे को देखकर उसका ताकुब करते हैं, क्योंकि वो सितारा ये जाहिर करता है कि ये दुनिया में किसी खास शख्सियत की जो है वो निशानी है। कोई खास शख्सियत दुनिया में पैदा हुई है। सो वो सितारा जो है उनकी रहनुमाई करता है। रुए जमीन पर कभी किसी के साथ ऐसा वाकया नहीं हुआ, कभी सितारे भी किसी की रहनुमाई की थी। आप यहां पर खड़े हो जाए रात के वक्त, एक सितारा जो आपको यहां नजर आएगा ना, पंजाब चले जाए वो आपको वही नजर आएगा। लेकिन खुदा ने ये अजीब काम किया। ऐसा सितारा नमूदार हुआ है जो कि किसी बड़े बादशाह की जो है वो निशानी बयान करता है। और फिर यकीनन मजूसियों ने सुन रखा होगा कि यहूदियों का बादशाह पैदा होना है, क्योंकि उसके बारे में नबियों ने पेशन गोया की हुई है। कहीं ना कहीं तो उनको मालूमात है जरूर, इसलिए वो उसको सिजदा करने के लिए बैतलहम की चरनी की तरफ जो है वो झुके, बढ़ते हैं आगे। नबियों की पेशन गोइयां है, तुम्हारी हामला होगी, बेटा जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। हमारे लिए एक बेटा बख्शा कि हमको हमारे लिए एक लड़का दौलत हुआ, सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदा कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। यहूदियों के बादशाह के बारे में यकीनन सुन रखा है। और यह अजीब सितारा है। कलाम में लिखा जब वो बैतलहम में गए तो वो सितारा उस घर पर जाकर ठहर गया। मैंने दसो घर देखे था सितारा, वो थे सितारा तो एक नहीं कई हजार सितारे होंगे। एक वक्त में जब हम आसमान की तरफ देखते हैं ना, तो कम से कम हम 5000 सितारों को एक नजर में देखते हैं। कम से कम 5000 सितारे हम एक वक्त में एक नजर में देखते। और ये पूरा आसमान जो है कायनात भरी पड़ी है सितारों से। तो किस सितारे को कहेंगे कि घर पर आकर ठहर गया? यानी खुदा ने अजीब काम किया। खुदा के खादम ने कहा कि सितारे की रोशनी और यीशु की रोशनी एक हुई थी। खुदा के किसी खादम ने ऐसे भी कहा। तो मकसद के सितारे ने निशानदही की कि ये कर रहे हैं, इस घर में वो मुनज्जी आलम जो है वो तजस्सुम लिए हुए हैं। तो मेरे अजीजों, गौर करना चाहिए इन बातों पर, दिल लगाकर गौर करना चाहिए, ताकि बहकर कहीं और ना निकल जाए। आजकल बड़ी बड़ी बातें, बहकर और निकलने से मतलब क्या है? क्रिसमस के बारे में बड़े सवाल है जी। बाइबल च नहीं लिखा 25 दिसंबर। भाई कोई गर्ज नहीं है मुझे 25 दिसंबर से, मुझे गर्ज है यीशु मसीह के पैदा होने से।
मुझे गर्ज है यीशु मसीह के दुनिया में आने से, क्योंकि अगर वो दुनिया में ना आता तो आज मैं और आप जिंदगी ना पा सकते। मुझे कोई गर्ज नहीं है 26 दिसंबर मना ले, 27 दिसंबर मना ले, 24 दिसंबर मना ले, 22 को कर ले, लेकिन अगर खुदा के खादमों ने किसी वक्त, खुदा के लोगों ने इस दिन को मुकर्रर किया तो सोच समझ कर किया, और सारी दुनिया जब एक अच्छे काम पर मुत्तफिक है तो मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं नुक्ते निकालूं। तो इसलिए बहकर और तरफ ले जाना चाहिए। कई रोकते हैं, क्यों बड़ा दिन बनाते हो, क्यों ईस्टर मनाते हो, क्यों दवाई रबानी पढ़ते हो, क्यों तुसी यह काम करते हो। मेरे अजीजों, गौर करना चाहिए इन बातों पर जो खुदा ने की, जो खुदा ने काम किए। अजीब काम है, इतनी बड़ी निजात है जिसकी पेशन गोइयां नबियों ने की है। इतनी बड़ी निजात है जो खुदा ने अजीब कामों से, निशानों से जाहिर की है। ये सितारा एक निशान है, कुंवारी हामला होगी, बेटा जनेगी, ये एक निशान है, क्योंकि रुए जमीन पर ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कुंवारी हामला हो। तो ये खुदा की कुदरत है। इसलिए मुकद्दस मरियम ने कहा ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। तो पैगाम रिसा ने कहा कि रूह कुछ तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मालूम है मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। तो इसलिए मेरे अजीजों, अजीब काम हुए, इन बातों पर गौर करना चाहिए। इतनी बड़ी निजात खुदा के बेटे के वसीला से जाहिर हुई, और ये निजात क्यों जरूरी थी? क्योंकि मैं और आप आग और गंधक की झील की तरफ जा रहे थे। हम खुदा से दूर हो गए थे, और आग और गंधक की झील से फक्त इसी सूरत में हमारा छुटकारा हो सकता था कि यीशु मसीह आकर रास्ते में से ही हमें खुदा के साथ मिला दे। देखें, दो ही हालतें हैं, या जिंदगी है या मौत है। दो ही हालतें हैं, या रोशनी है या अंधेरा है। अगर हम रोशनी में नहीं है तो फिर किस में है? अंधेरे में। अगर हम जिंदगी में नहीं है तो फिर मौत में। और फिर मौत क्या है? आग और गंधक की झील। और जिंदगी क्या है? खुदा। खुदा जिंदगी है। तो इसलिए यीशु मसीह आया और उसने हमें रास्ते ही से खुदा में मिला दिया, और हम जिंदगी में दाखिल। और आज खुदा की शुक्रगुजारी है, यीशु के वसीला से आज हम खुदा के बेटे बेटियां हैं। यीशु के वसीला से आज हम खुदा के घर के लोग हैं। यीशु के वसीला से आज हम खुदा की मुकद्दस कौम, शाही कहनों का फिरका, खुदा की बरगुज़ीदा नस्ल है। यीशु के वसीला से हमारा मकाम जो कल पस्ती था आज सर बुलंदी है। कल जो हम मौत के फरजंद थे आज हम खुदा के तख्त पर बैठने के लिए बुलाए गए। तो इसलिए यीशु मसीह के वसीला से जो है हम पर बड़ा रहम है। इसकी जो है खुदा ने जो है निशानों के जरिया से, अजीब कामों के जरिया से, तरह तरह की के मौजों और रूह कुदस की नेमतों के जरिया से इसकी गवाही दी है। जब यीशु मसीह आया तो उसने अपने आप को निजात दहिंदा जाहिर किया। जन्म का अंधा है, अंधेरों में पड़ा है, भीख मांगता है, यीशु मसीह उसको आंखें देता है, रोशनी देता है। यानी उसकी एक ऐसी हालत जो मौत से जुड़ी है उसको दूर करके यीशु मसीह ने उसको जिंदगी की हालत दी, रोशनी की हालत दी। पिछले दिनों हमारे एल्डर साहब का ऑपरेशन हो, मुझे मिसाल याद आ गई। एल्डर साहब का पर्दा आया सी ते एल्डर साहब का ऑपरेशन होया ते एल्डर साहब ने दस्या कि खुदा दा शुक्र है कि हुण मैनू इस तरह के बस चानन हो गया सारा। मेरे वालिद साहब से ऑपरेशन हुआ तो मैंने कहा लगा बिशारत यार, मैंने तो दूर तक साफ नजर आता है। रोशनी कितनी चंगी चीज है, लेकिन जो जिस पर अंधेरा छाया होता है ना, उसे ही पता है कि अंधेरा क्या है। जिस पर बीमारी छाई होती है उसे पता है कि बीमारी क्या है। और मैं पिछले साल गुजरा इस मामले से मैं गुजरा, और मुझे ऐसा भी लगता था कि शायद मेरी जिंदगी के आखिरी दिन है, लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी है कि खुदा ने फिर उस अंधेरे से निकाला, उस मौत से निकाला, और खुदा ने आपके सामने खड़ा किया। सो ये यीशु मसीह के बाइस है। उससे मौजूद किए, मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी, कोड़ियों को पाक साफ किया, बुजुर्ग रिश्ता को आजाद किया। इन मौजूदों के जरिए से साबित किया कि मैं दुनिया का निजात दहिंदा हूं। सो इतनी बड़ी निजात खुदा के बेटे के वसीला से जो आई, इतनी बड़ी निजात जो खुदा खुद लेकर आया। और फक्त इसलिए कि मैं और आप शरीयत पर अमल करके जिंदगी नहीं पा सकते थे,
क्योंकि शरीयत 613 अहकाम थे और 613 हुक्मों पर मुझे अमल करना मुश्किल था। मैं तो एक हुक्म पे अमल नहीं कर सका, खुदा के दरख्त का फल नहीं खाना, पर हमने जब ये पूछ के खा गए, नहीं अमल कर सकते। 613 हुक्म कैसे पूरे करते? तो इसलिए खुदा ने बड़ी निजात जाहिर की अपने बेटे के वसीले से। उसने हम पर बड़ा रहम किया कि हम जो मौत के साया की वादी में थे, हम पर उसका नूर चमका। वो इंसान बन के हमारे लिए आ गया और फिर हमारे बोझ उसने उठा लिए, हमारे गुनाह उठा लिए। कहां से उठाए? यर्दन में से हमारे गुनाह उठाए उसने, और फिर सलीब पर ले जाकर उसने हमारे दुख बर्दाश्त किए। उसके मुंह पर थूका गया, उसको थप्पड़ मारे गए, उसे गाली गलौज किया गया, उसकी तजलील की गई, कांटों के दाग पहनाए गए, कोड़े मारे गए, उसे सलीब उठाकर ले जा रहे हैं और बाद साथ में ठट्ठे कर रहे हैं, क्रिमजी चौके पहना गए। यानी उसकी बेइज्जती करने की कोई हद नहीं छोड़ी उन्होंने। और वो ये सब कुछ क्यों बर्दाश्त करता रहा? ताकि मैं और आप जिंदगी पाने, फक्त हमें जिंदगी देने के लिए। तो इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर, इग्नोर करके इतनी बड़ी निजात को हम क्यों कर बच सकते हैं? एक वक्त में खुदा उस अहद को जो मिटने वाला था, खुदा उसको कामिल तौर पर सजाएं देता है लोगों को जो उसके हुक्म दूरी करते। तो इतनी बड़ी निजात से जो खुदा के बेटे के वसीला से जाहिर है, हम क्यों कर बच सकते हैं? खुदा ने बड़ा रहम किया हम पर, खुदा ने बड़ा तरस खाया हम पर, खुदा ने बड़ा करम किया है कि हम किसी लायक न थे। आज भी कोई बंदा है जो कह सकता है कि मेरी दुआएं मुझे बचा लेंगे, मेरे रोजे मुझे बचा लेंगे, मेरे गीत मुझे बचा लेंगे, मेरा कलाम मुझे बचा लेगा, या मेरी इबादतें करना मुझे बचा लेगा, या मेरी नेकियां मुझे बचा सकती हैं। आज भी कोई शख्स अपने अमाल से रास्तबाज नहीं ठहरता, क्योंकि जहां वो एक नेकी करता है साथ कोई गुनाह भी कर लेता है। तो जब गुनाह किया तो सारी नेकी पर क्या हो गया? पानी फिर गया। आदम कितना अरसा अदन में रहा? मैंने एक तजर्बा किया था, मैंने एक अंदाजा लगाया था, खुदा ने मुझे एक तरीका बख्शा था, लेकिन वो किसी वक्त बयान करेंगे फिर। लेकिन मैंने ये सीखा खुदा में कि आदम तकरीबन 300 साल तक जो है अदन में रहा, और उस सारे अरसे में वो खुदा के साथ जो है उसकी रफाकत रही है। लेकिन एक गुनाह ने उस सारी अच्छी जिंदगी पर पानी फेर दिया। एक गुनाह ने उस सारी जिंदगी को खत्म कर दिया। खुदा ने कहा तू अदन में रहने के लायक। तो हमारी कितनी नेकियां होंगी, एक गुनाह हमारी सारी नेकियों को खत्म कर देता। तो इसलिए हम कैसे जिंदगी पा सकते हैं? इसलिए सबसे अच्छा और आसान तरीका है कि हम बर्रे पर अपने हाथ रख दें, और ये वो बर्रा नहीं है जो ज़बा होगा और मर जाएगा, बल्कि ये वो बर्रा है, खुदा का बर्रा है, जिस पर जो कोई हाथ रखेगा वो उसके गुनाह भी उठा लेगा, उसकी मौत भी उठा लेगा, और फिर उसकी मौत पर फतह पाकर वो जिंदा भी हो जाएगा कि अब तुझे किसी दूसरे बर्रे की जरूरत नहीं है, अब तुझे किसी दूसरे कफारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज से अब तक तेरा कफारा हूं। तो इसलिए जो कोई यीशु मसीह के नाम पर ईमान रखता है वो हलाक नहीं होता, हमेशा की जिंदगी पाता है। हमसे कमियां तो आज भी होती हैं, पर आज पता है यीशु क्या करता है? की करता है यीशु? बाप के देने बैठकर हमारी क्या करता है? खुदावंद कहता है, यीशु कहता है, ऐ बाप ये मेरी बेटी है, ऐ बाप ये मेरा बेटा, इसके लिए मैंने अपना खून बहाया है, बाप इसे माफ कर दे। हमारी शिफायत करता है खुदा यीशु मसीह। सो अपने खून में आज भी वो हमें जो है वो बचाता और हमें छुड़ाता है। सो इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं? तो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, भाइयों, इस निजात को पहचानें, इस निजात को दुनिया में खोना दें, इस निजात को दुनिया के धंधों में जाया ना कर दें। क्या खुदा और आपका ताल्लुक सिर्फ क्रिसमस तक है? क्या खुदा और आपका ताल्लुक सिर्फ ईस्टर तक है? क्या खुदा और आपका ताल्लुक सिर्फ खास इबादतों तक है, या उन शुक्रगुजारियों तक है जो आप अपने घर में अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए मनाते हैं? खुदा का ताल्लुक आपसे 24 घंटे है,
اور خدا کے گھر جو ہے اسی لیے ہوتے ہیں کہ آپ خدا کے گھر میں آئیں، عبادت کریں، اس کی حمد کریں، اور لکھا ہے کیا ہی اچھا ہے کہ بھائی باہم مل کر بیٹھے۔ کلام میں لکھا ہے وہ ہم نے سیکھا مقدسوں کی شراکت، سو مقدسوں کی شراکت ہونی چاہیے آپس میں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے تقاضوں کو پورا کریں۔ اتنی بڑی نجات ہمیں ملی ہے، کیوں غافل رہے؟ اور یہ بھی یاد رکھیں بائبل میں یہ بھی لکھا ہے جو مجھے اے خداوند کہتے ہیں وہ بھی سب آسمان کی بادشاہی میں داخل ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی رہ جائے، اور جو رہے گا وہ فقط اس لیے رہے گا کیونکہ وہ یسوع مسیح سے غافل ہو جائے گا۔ تو اس لیے خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو توفیق دے کہ آپ اس نجات کو پہچانیں، آپ اس نجات کی قدر کریں۔ یاد رکھیں یسوع نے بڑا کام کیا ہے، اور کی کر سکتا ہے ساڈے واسطے؟ اسی اج بھی کہنے خداوند آ بھی نہیں ملیا۔ یاد رکھو جڑا اپنا بیٹا ہی ساڈے لیے قربان کر دے، اور اس تو بعد کہ ساڈے واسطے خدا کی کرے گا؟ دنیا دی چیزاں دے بارے تو نہیں کہا تسی کیوں فکر کرتے ہو؟ ماں دے پرندیاں وال ویکھو، نہ بیج دے نہ بڑھ دے نہ کوٹھیاں چ جمع کر دے، تد بھی تانوں میں انہاں نوں کھوانا تے اے نادانو اے کم تکا دو کہ تانوں نہ داں گا۔ دنیا کی چیزیں تو خدا ویسے ہی دے دیتا ہے۔ اچھی بات ہے ہم کام کرتے ہیں، اچھی بات ہے ہم محنتیں کرتے ہیں، لیکن جو بے روزگار بیٹھا میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ روٹی کھا کے وہ بھی سوتا ہے۔ خدا مہیا کرتا ہے کہیں نہ کہیں سے۔ تو اس لیے فکر نہیں کرنی، فکر صرف اس بات کے لیے کہ میں یسوع مسیح کی شکر گزاری اپنی زندگی سب کچھ خدا نے کیا۔ دیکھو نے منہ تے تھکوایا، چنڈا کھادیاں، گھوڑے کھادے، ذلیل ہویا، گالاں کھادیاں ساڈی خاطر، سلیباں چکیاں نے، کنڈے دے تاج پوائے نے۔ میں ایک گیت لکھیا سی، آجا تو چھتی آجا تو، یسوع تینوں پیار کردا، وہ تیرا انتظار کردا۔ یعنی ضرورت اس سمجھ کی ہے کہ ہم بھی خدا کے لیے کچھ کریں، ہم بھی تو اپنی محبت دکھائیں۔ تو اس کا آخری بول تھا امرت یسوع تینوں واجا ماردا، امرت یسوع تینوں واجا ماردا، کچھ تے تو مول پا دے او دے پیار دا۔ یعنی کچھ تو ہم بھی اس کا مول ادا کر دیں۔ خداوند تو نے ہمارے لیے اتنا بڑا کام کیا ہے، ہم بھی تیرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ تو کر دیں، کچھ تے مول پا دیں۔ تو اس لیے خداوند آپ کو بڑی برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ کاش کہ یہ میری باتیں جو چند تلخ بھی ہیں آپ کو جو ہے وہ ناگوار نہ گزرے، بلکہ آپ ان کو نصیحت کے طور پر لیں، آپ ان کو اصلاح کے طور پر لیں، اور خدا کا پاک روح آپ کی زندگی میں کام کرے، اور آپ یسوع مسیح اپنے نجات دہندہ سے ہمیشہ جو ہے واقف رہیں، لپٹے رہیں، ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، کیونکہ جو کوئی اسے تکتا رہے گا ہمیشہ کی زندگی پائے گا، لیکن جو اس سے غافل ہو جائے گا، یاد رکھیے آگ اور گندم کی جھیل اس کے لیے موجود ہے۔ خدا نہ کرے کہ ہم آگ اور گندم کی جھیل میں جائیں، بلکہ ہم خدا کے تخت پر، عالم بالا پر پہنچائے جائیں، اور ہمیشہ عبدالآباد خدا کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ اور یہ نجات جو ہمیں بخشی گئی ہے، ہم ہمیشہ اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، مسیح ہمارے خدا مند کے وسیلے سے، آمین۔ سوائے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں خوبصورت کلام کے لیے۔ زبور 72 گائیں گے، اور اسی دوران اپنے ہدیے اور نذرانے ہم خداوند کے حضور میں لائیں گے۔ زبور 72۔ رہے گا نا سدا کر مسیدہ، رہے گا نا سدا کر مسیدہ، رہے گا جب تلک سورج، رہے گا جب تلک سورج، رہے گا اس پر
सब लोग माने उस गाँव पर सब लोग माने देखो दिया रहेगा दिया देखो दिया रहेगा जो इसराइल दारा खुदा है जो इसराइल दारा खुदा है अजाइब कम करेगा सदा अजाइब कम करेगा सदा है खुदा का फातिमा है शान वाला खुदा का फातिमा है शान वाला सदा की रहेगा सदा की दुनिया भी है दुनिया के सारी दुनिया दुनिया के सारी कहो चंद गल्लां बाबा हसन साहब बैठे ने एल्डर इकबाल साहब बैठे ने साडे एल्डर उमैर साहब एल्डर पतरस एल्डर आरफ और बाकी जितने भी सारे चरच के इंतजामिया ने सब वालों भाई शमशाद वालों सारे वालों असीं तुहानूं सारिआं नूं बड़ा दिन मुबारक आखदे हां तो खुदा तुहानूं बड़ी बरकत दे इस तरह झुकाइए दुआ करें कादर मुतलिक अज़ीम खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस सुहाने खूबसूरत लम्हों के लिए आज के दिन के लिए बाप ये सारी खुशियां तेरे बेटे के वसीले से हैं बाप तेरी शुक्रगुजारी है कि तूने हम पर बड़ा रहम किया खुदा तूने हम पर बड़ा फजल किया कि हम जैसे गुनहगार और बेवजूद लोगों को खुदावंद तूने अपने बेटे बेटियां ठहरा लिया तेरी शुक्रगुजारी है कि खुदावंद तूने नहीं देखा कि ये ज़कई है तूने नहीं देखा ये वो गुनहगार औरत है जो एनफेल के वक्त पकड़ी गई तूने नहीं देखा कि ये वो औरत है जिस पर शमाउन इल्जाम लगाता है खुदावंद तूने हम जैसे गुनाहगारों को खुदावंद उठा खड़ा किया और अपने बेटे बेटियां ठहराया और मौत की दलदल से निकाल कर जिंदगी के वारिस कर दिया और ये खुशियां तेरे बेटे के वसीले से हैं कि वो इस दुनिया में आया हमारा निजात दहिंदा बनकर आया और निजात के अमल को वहीं से स्टार्ट किया जहां से हम खुदावंद जन्म लेते हैं क्योंकि तेरे बंदा दाऊद ने कहा था कि मिन्नू विच गुनाह ने जम्मिया मेरी माई सो खुदावंद तेरे बेटे ने भी वहीं से जन्म लिया ताकि गुनाह का मुकम्मल खात्मा हो सके कादर मुतलिक खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं अब बुजुर्ग आसमानी बाप इन तमाम जिंदगियों को बरकत देना इनके हम दोस्ताइश को अपने हुजूर में खुदावंद कबूल करना इनके हदिये नजरानों को अपने हुजूर में कबूल करना जो खुदावंद तेरे घर में खुदावंद खुशी के साथ बोल रहे हैं खुदा इन्हें बख्शना कि खुदावंद आसमान तेरा अच्छा खजाना इन पर खुला रहे संडे स्कूल के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं रफाकत ख़वातीन के ग्रुप के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं यूथ ग्रुप के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं एल्डर साहबान की ट्रेनिंग के तरक्की के लिए खुदा हम तेरी बरकत चाहते हैं पादरी साहबान के लिए तेरी बरकत चाहते हैं खुदा हम तेरे बंदा पादरी हसन के लिए हम तेरी कामिल शिफा को मांगते हैं खुदा
भाई सफ्तर के लिए हम तेरी कामिल शिफा को मांगते हैं खुदावन। कादर मुतली खुदा अगर और भी कलीसिया में कोई बीमार और परेशान और दुख में है तो कादर मुतली खुदा तो अपना हाथ बढ़ा और कामिल शिफा से मामूल कर खुदा। आज का दिन, आज का खुदावंद ये वक्त हमारे लिए बाइस से बरकत ठहरे खुदा। अपनी सारी कलीसिया अपने सब खादमों के साथ हो खुदा। कादर मुतली खुदा वो तमाम जिंदगियां जो खुदावंद इस सारे इंतजामात में मदद कर रही है, साउंड सिस्टम के हवाले से, इस इंतजामात के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, खुदा उन सबके लिए बरकत की दुआ करते हैं खुदा। कादर मुतली खुदा हमारे मुल्क पर भी तू अपनी सलामती का हाथ बढ़ा। तेरे बेटे अपने खुदा यीशु के नाम के वसीले से मांगते हैं, जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है तुम हमारी कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्स की रफाकत और शराकत अब से हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया के सब ईमानदारों के साथ साथ रहे। आमीन। तो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और उसका हाथ में साथ करें। आमीन।